welcome to another session of NEET Crash Course. So my name is Gaurav Gupta and today we are going to do work, power and energy. Again guys, a very important chapter this one. Easy questions will be asked but very important chapter, okay? Chalo, shall we start guys? Are we geared up for this session? Chalo, let's start. So those who don't know me, my name is Gaurav Gupta and I have taught and mentored 5,000 plus students and have 4+ years of teaching experience. शुरू कर लेते हैं without any wasting any time because you are here for the session, है ना? Before starting, this is a very important information. Again, you have to download this VEDANTU app if you have not done till now. It is available for Android in the Play Store. Please go to the Play Store, download it. You will be getting the doubts, study material, classroom resources, and also I think you have started getting the PDFs of the sessions with 5 homeworks, right? So for this session also, you will be getting 5 homeworks and that you have to solve very sincerely, okay? Chalo, next. Also, if you have not subscribed to the channel, VEDANTU NEET channel yet, please subscribe it and hit the like button if you like this video. Let's move ahead guys. First of all, before starting our MCQs, थोड़ा सा theory का revision कर लेते हैं, okay? A quick revision of whatever we have studied in work, power and energy. So first thing is work done का formula. Now this is very easy thing, you already know, but yeah, it's my job just to tell you once. So work done is the dot product of force and the displacement, है ना? Any dot product of two vector is a scalar quantity and work is a scalar quantity. Force is a vector, displacement is a vector, but unka dot product, it is scalar, right? So work done is a scalar quantity. Unit and all you know, joule, isn't it? Or Newton meter. But if work done by a variable force you have to calculate, then we take small displacement ds. यहाँ पे क्या था? Force into displacement. But here you take small displacement. We assume that for that small displacement force is constant. हम ये लिख लेते हैं and then we just integrate it. Okay, for the initial point to the final point, you will get the work done. We'll be doing the problems related to this. Don't worry at all. Chalo, let's move ahead. Next thing which is very important is relation between kinetic energy and momentum. Many times in medical examinations, they have asked questions based on this only. What is the relation between kinetic energy and momentum? इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. Let's say momentum is changing by 200%. How much kinetic energy will change? So we'll do one easy problem of that variety also, just to ensure that we are good with all the varieties that are being asked in all the examinations. Okay? अच्छा, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, I'll just tell you how this is coming. So we have kinetic energy which is given by half m v square. ये होता है ना kinetic energy multiplied by m divided by m. ये चीज क्या बन जाएगी देखो, m square v square that is p square. तो you will get p square divided by 2 into m. Simple thing. चलो, let's move ahead. Work energy theorem. Work done due to all forces. ऑल फोर्सेस मतलब ऑल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं गाइस बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, जहां वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो. ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन विच वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो. लेट्स से ग्रेविटेशन फोर्स का अगर आपने एग्जांपल लिया, आपने यहां अर्थ के लेवल से शुरू किया. लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो हियर. इफ यू गो टू सम हाइट देयर इज सम वर्क डन, बट अगेन इफ यू कम बैक हियर, अगेन नेट वर्क डन बिकम्स जीरो. So that is a conservative force का example. We'll be seeing that in much detail. Okay, don't worry about that. So if you take all forces, I mean work done due to all the forces, it should be equal to change in kinetic energy. Okay. Also power, ये बहुत ज़्यादा important है. So power is rate of doing work or rate of energy transfer, है ना? So work done divided by time is known as power. अब इसका देखो work done का जो हमने formula देखा था for variable force, it was force dot displacement. ये देखा था. अगर फोर्स कांस्टेंट ले लें एक टाइम के लिए, फोर्स अगर कांस्टेंट लिया, इट विल बी ds डिवाइडेड बाय dt, है ना? तो f मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज ds बाय dt? वेलोसिटी. तो फोर्स इनटू वेलोसिटी गिव्स यू पावर. ओके, दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर आवर लेक्चर टुडे. शुरू करते हैं विद द एमसीक्यूज, राइट? आर वी रेडी फॉर इट? यस, गुड. चलो शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम आज का. प्लीज डू इट गाइस, लेट मी नो द आंसर. A body is there, mass is given as 1 kg, begins to move under the action of a time dependent force. That time dependent force is given as this, 2t I cap plus 3t square j cap. Time के साथ साथ change होता जा रहा है force. This is the condition. Where I and j are unit vectors along the x and y axis
what power will be developed by the force at the time t. पावर कितना डेवलप्ड होगा. अच्छा, जस्ट नाउ वी हैव सीन द फॉर्मूला, राइट. पावर कैसे कैलकुलेट करना है. पावर इज गिवन बाय फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि इन दोनों का क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है. फोर्स और वेलोसिटी का इट इज डॉट प्रोडक्ट. जस्ट लाइक एनर्जी और वर्क डन was the dot product of force and displacement, power is the dot product of force and velocity. शुरू करते हैं. देखना, force is already given to me, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, no issue. But do I know velocity vector? Is it written anywhere? No, it is not written. So that means you have to find out velocity vector first of all, right? कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से. Force is given to me, force vector is given to me 2t I cap plus 3t square j cap. ये फोर्स दिया हुआ है. फ्रॉम माई सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, नॉट माइन, आई नो दिस दैट फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू dv by dt. ये पता है क्या हमें, F इज इक्वल टू ma, है ना. F इज इक्वल टू ma, सो m dv by dt हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2t I cap प्लस 3t स्क्वायर j cap. अब ध्यान से देखना, मास कितना गिवन है, 1 kg. ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं. This equation can be written as dv vector is equal to 2t I cap plus 3t square j cap और dt. Okay. इसका मतलब क्या पता चल गया मुझे, velocity का function as a time. If I integrate this, I can get it, isn't it? इसका मतलब क्या होता है, dv ये integrate हो जाएगा. This also will be integrated. Okay. This is very important line, begins to move. मतलब at time t equal to 0. What was the velocity? 0. Initial velocity was 0. So this will be integrated from 0 velocity at time t equal to 0 to some velocity v, to some velocity v at some time t. देखो लिमिट्स देख लो ध्यान से. 0 velocity था at time t equal to 0. This is time and this is velocity. Final velocity v at some time t. Simple limits, है ना. If we integrate this integral dv, it will just give you v. लिमिट्स भी रखोगे तो वो सिर्फ v बन जाएगा. सो पुट इट जस्ट v. व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू टर्म्स. एडिशन में है तो फर्स्ट वी कैन इंटीग्रेट दिस एंड देन दिस. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 2t I cap. I cap को तो भूल जाओ, दैट इज जस्ट यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन. 2 into t. आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, फर्स्ट क्लास में बताया था. x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहां पे t की पावर में क्या है, जस्ट 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, राइट. So if I integrate that, it will become 2 is a constant, तो वो 2 तो बाहर है ही. t power 1, that is t power 1 plus 1, n plus 1, 1 plus 1, 2 divided by n plus 1 which is also 2, है ना. प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, 3t स्क्वायर, तो it will be 3t cube divided by 3. 2 plus 1 divided by 2 plus 1, है ना. और लिमिट्स कहां से कहां है इसके, 0 से t. मतलब जब t रखेंगे विल गेट सेम थिंग, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर बाई 3, सॉरी क्यूब बाई 3, और फिर बाकी 0 हो जाएगा. सो आफ्टर कैंसिलिंग आउट दिस 2 and 2 and 3 and 3, द वेलोसिटी वेक्टर आई एम राइटिंग हियर, द वेलोसिटी वेक्टर दैट विल बी गेटिंग विल बी t स्क्वायर I कैप. ये I कैप और j कैप भी है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. तो t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप हो गया. देखो t क्यूब j कैप, मतलब इट वॉज हिडन, है ना. वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता नहीं था, इट वॉज हिडन इन द क्वेश्चन, आई फाउंड इट आउट. ठीक है, अब मिल गया वेलोसिटी वेक्टर. नाउ इट इज वेरी सिंपल, मुझे क्या चाहिए, पावर. तो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस वेलोसिटी. क्या लिखना चाहिए, देखो 2t I प्लस 3t स्क्वायर j एंड दिस विल हैव अ डॉट प्रोडक्ट विद दिस t स्क्वायर I एंड प्लस t क्यूब j. अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i बिकम्स 1, i डॉट j बिकम्स 0. i डॉट j के बीच में कितना एंगल है, i मतलब x, j मतलब y. तो दोनों डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे, है ना, तो वो क्या होता है, cos थीटा के टर्म्स में आता है. यू शुड नो दैट cos 90 0 हो जाता है, तो i डॉट j इज ऑलवेज 0. सबको आता है ना ये, आई थिंक एवरीवन नोज दिस. i डॉट i विल बी इक्वल टू 1, i डॉट j विल बी इक्वल टू 0. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, करो डॉट प्रोडक्ट लो, राइट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट. 2t I डॉट t स्क्वायर I, I डॉट I कितना बन गया, 1, तो इट विल बिकम हाउ मच, 2t क्यूब, राइट, t स्क्वायर और t प्लस ये j वाले तो 0 हो जाएंगे, है ना. दिस ऑल्सो विल बिकम 0. अब देखो ये 3t स्क्वायर j टाइम्स t क्यूब j,
जे डॉट आई 0 हो गया, जे डॉट जे निकालना है, तो दैट विल बी हाउ मच 3t⁵, ठीक है। सो 2t³ 3t⁵ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला है ना, 2t³ और 3t⁵, एंड दिस विल बी स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर वैल्यू आ गई, वैल्यू इज आई मीन यूनिट इज वॉट। समझ में आ गया क्या? सो स्लाइट वेक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, थोड़ा सा कैलकुलस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और वर्क पावर एनर्जी तो बस इतना ही था, ओनली दिस मच वाज द वर्क पावर एनर्जी, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। गॉट इट गाइस? क्लियर है बिल्कुल? चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। यस, 2t³ + 3t⁵ इज द आंसर। यस, दिस क्वेश्चन, ड्रॉप ऑफ रेन ऑफ वाटर हैविंग मास 1 gram falling from a height of 1 kilometer. So there is a drop and it falls through a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. So when it hits the ground, its speed is 50 meters per second. He is asking, take constant with a value, हाँ g की बात कर रहा है वो, राइट, ग्रेविटेशन वाला, 10 meter per second square, the work done by the gravitational force and the resistive force of air. So generally in such questions we just neglect the air resistance and we just write the final velocity will be under root 2gh, but certainly this is less than under root 2gh. You can just calculate that. This 50 is less than that value. Why it is less? Because some work or some energy was lost in overcoming the air resistance which is already there, right? एक चीज ध्यान से देखना, what is the work done by gravitational force? This is very easy. In what direction the force due to gravitation is acting? Downward direction, right? mg. And what about the displacement? It is also in the downward direction. When mg and displacement are in same direction, the angle between them is 0. Dot product को हम कैसे लिखते हैं? देखो, work done is equal to force dot displacement, यही पढ़ा है ना हमने। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? fs cos theta. cos 0 यानी कि 1, so it will be positive, work done will be positive, f into s. अब देखो work done कितना हो जाएगा? force is mg और height कितना नीचे आया वो? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दैट मीन्स, चलो ठीक है, यहां पे मैं h लिख लेता हूं, दैट विल बी 1 किलोमीटर। सॉल्व इट, कितना आ जाएगा? 10⁻³ इज द मास, राइट? भूलना मत, ग्राम्स में दिया हुआ है, पुट इट इन kg फर्स्ट ऑफ ऑल, 10⁻³ सो 10⁻³ इंटू 10 इंटू 1000, दैट इज हाइट, ये किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट किया, आंसर विल बी जस्ट 10 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और हाँ ये वाला कितना आ गया? 10। कहां पे 10 है? ओनली वन ऑप्शन, हो गया आंसर तो, राइट? ऑप्शंस आर वेरी इजी, बट यस वी हैव टू रीच टू द फाइनल आंसर, वो भी कर लेते हैं। व्हाई इट विल नॉट बी -10? समझ में आ गया ना? ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउन। अब देखना ध्यान से, द रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, air resistance will apply a force in this direction, right? Resistance का मतलब क्या है? If I am trying to move in this direction, resistance मतलब force is applied in this direction by air, है ना? In this case, force will be in this direction, but displacement इधर है. I am pretty sure that resistive force of air should be negative. समझ में आ गया? कोई भी resistive force है, उसका work done will be negative. तो वो तो negative आएगा. मुझे ऑप्शन पता चल जाएंगे यहां से, राइट? आई गॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज सी, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू। अब ध्यान से देखना, जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बेसिकली दिस रेजिस्टिव फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्स, विस्कस फोर्स, दे आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है? तो W ड्यू टू ऑल वर्क्स is equal to change in kinetic energy. ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना? What is the work done by gravitation force? क्योंकि ये किसका किसका एडिशन होगा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, यही मतलब होगा ना इसका? तो ग्रेट। अब देखो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इज 10 प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं यहाँ पे, WA इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी डू आई नो? यस, हाफ mv², तो मैं क्या लिख लूंगा? हाफ मास इज 10 to the power -3, वेलोसिटी इज गिवन 50 इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यहां से तो ड्रॉप हुआ ना वो, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, हाँ यहां से वो गिर रहा है 0 वेलोसिटी से, तो हियर वेलोसिटी इज 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0।
अब हो गया क्वेश्चन, देखो WA आ जाएगा राइट, दिस माइनस दिस, इफ यू सॉल्व इट ये कितना आ जाएगा 2500 बाई 2 है ना, तो 1.25 के आसपास। When WA will be equal to 1.25 minus 10, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8.75, ठीक है। दिस इक्वेशन इटसेल्फ आफ्टर सॉल्विंग विल गिव यू minus 8.75 joule. Okay, got it guys? Simple problem, right? But yet very important. Chalo, next move ahead. This is the question from spring work done. He is saying two springs are there, P and Q. ये हो गया P spring and this is the spring number Q. Okay. He is saying first of all constants are given, right? KP and KQ such that KP is greater than KQ. ठीक है, समझ में आ गया। They are stressed by same amount in case A. मतलब यहां पे जो displacement दिया that is same. X1 that is displacement given to this is equal to X2 is equal to X. ऐसा कुछ। He is asking us to compare the work done. Very simple. Work done for the spring is given by half K X square. ठीक है। अच्छा, work done is proportional to K and X square. X is same, right? In two cases he's saying X is same. If X is same, that means work done is only proportional to K. मतलब अगर K is more, अगर K ज्यादा है, then work done also will be more. So for which spring K is more? P, right? K P के लिए ज्यादा है. तो what about work done? Work done for P will be greater than work done for Q. Simple question, है ना? Great. Second case में what he is saying? नॉट द डिस्प्लेसमेंट बट फोर्सेस आर सेम, है ना। सेकंड में उसने क्या बोला है, देखो केस बी में दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, मतलब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, दिस इज द कंडीशन गिवन। स्लाइटली नाउ यू कैन जस्ट मॉडिफाई दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, देखो क्योंकि यहां पे फोर्स दिख रहा है, क्या आपको कहीं पे भी फोर्स नहीं दिख रहा, राइट? हाउ कैन वी एनालाइज दिस फॉर सेम फोर्स इफ यू डोंट हैव फोर्स इन द इक्वेशन? इसको हम क्या करेंगे, देखो I know this equation F equal to kx. Don't worry about minus sign, okay? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स। x को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स अपॉन k। कैन आई राइट दिस? फोर्स अपॉन k, x के जगह पे रखो फोर्स अपॉन k, इट विल बी f स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। 1k फ्रॉम डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड आउट विद 1k ऑन न्यूमरेटर। तो ये जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सेम फॉर्मूला, इट विल बिकम एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। समझ में आया क्या? देखो एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k, क्या किया मैंने, x को रखा f बाई k, तो ऊपर क्या आ गया, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू k स्क्वायर, 1k फ्रॉम द न्यूमिनेटर गॉट कैंसल्ड आउट विद द डिनोमिनेटर, तो क्या बच गया नीचे, सिर्फ k, एफ स्क्वायर बाई 2k। अब देखो यहां पे जो वर्क है दैट इज फॉर सेम फोर्स, राइट? फॉर सेम फोर्स इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू k। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल मतलब इफ k इज मोर वर्क डन विल बी लेस, अगर k ज्यादा है देन वर्क डन विल बी कम, है ना? समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, फॉर विच स्प्रिंग k इज मोर, p, तो वर्क डन क्या होगा p का, लेस, तो वर्क डन ड्यू टू p इज लेस देन वर्क डन ड्यू टू q। तो केस a का आंसर इज दिस एंड केस b का आंसर इज दिस। ही इज आस्किंग इन दिस सीक्वेंस, पहले a और फिर b, तो a में हम क्या लिखेंगे, WP ग्रेटर देन WQ। कहां पे है देखो, ये वाला। खैर यहीं से आंसर आ गया था, ओनली आफ्टर डूइंग दिस यू गॉट द आंसर, राइट? ऑप्शंस आर अगेन वेरी इजी। सेकंड केस में ये वाला आ जाएगा, WQ इज ग्रेटर देन WP और WP लेस देन WQ, सेम थिंग, राइट? ग्रेट गाइस, ग्रेट। चलो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। दिस वन अगेन, यूनिफॉर्म फोर्स इज गिवन 3I प्लस J, है ना? दिस इज द यूनिफॉर्म फोर्स ऑन अ मास, पार्टिकल का मास दिया हुआ 2 kg। आई डोंट थिंक मास विल बी रिक्वायर्ड हियर। देखते हैं। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2I प्लस k टू 4I प्लस 3 माइनस k। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट बना लो आप। पार्टिकल का जो इनिशियल सिचुएशन था दैट इज 2I प्लस k, मतलब 2, 0, 1। ये समझ में आता है ना? x का कोफिशिएंट इज 2, y का कोफिशिएंट इज 0 और k का कोफिशिएंट इज 1। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहां पे है, यहां कहीं पे, विच इज 4, 3, -1। सो पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एंड कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस मच इज एक्टिंग विच इज 3I प्लस J। ठीक है? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन? सिंपल फॉर्मूला मुझे पता है,
वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ये वाला लाइन देखना ध्यान से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, इजंट इट। हाउ डू वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? यहां का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस द इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? 4i प्लस 3j माइनस k, और इनिशियल क्या है? 2i प्लस k। सब्ट्रैक्शन ले लो दोनों का बस, 4i माइनस 2i, इट विल बी 2i। डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, राइट, डिस्प्लेसमेंट 4i माइनस 2i 2i, 3j, और यहां पे तो कुछ है ही नहीं ना जी पे, j का कुछ भी नहीं है, तो जस्ट माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 3j। और फिर यहां पे क्या देखो, माइनस k माइनस अगेन दिस माइनस k, राइट, माइनस के, समझ में आ रहा है ना, दैट इज माइनस के माइनस ऑफ ये प्लस के, तो क्या हो जाएगा? माइनस के, दैट इज माइनस 2k। समझ में आ गया? ग्रेट, माइनस 2k, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स मुझे ऑलरेडी पता है? यस, ऑलरेडी पता है, ये देखा 3i प्लस j, तो क्या लिख लूंगा मैं? वर्क डन 3i प्लस j डॉट 2i प्लस 3j माइनस 2k, खत्म। अब डॉट प्रोडक्ट लेना मुझे आता है, अगर i और i में होगा डॉट प्रोडक्ट तो वो 1 हो जाता है, i j 0 i k 0, तो i और k में तो सोचने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो 3i इंटू 2i कितना हो जाएगा? वो 6, j प्लस 3j वो कितना हो जाएगा बताओ? 3, k में कुछ भी है क्या? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे k का कोफिशिएंट इज 0, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट विल जस्ट बिकम 0। आंसर क्या आ जाएगा? 9। समझ में आया ना डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया? i वाले को i से डॉट प्रोडक्ट करो तो 3 2 6, j वाले को j से 3 1 3, और k में यहां पे 2 है, यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0, तो 2 इंटू 0 0, k वाला पूरा 0 हो गया। 6 प्लस 3 9 जूल इज द आंसर। ओके, डी। क्लियर ऑन दैट? ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, अगेन वेरी इजी वन। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है y और x का, एनी रैंडम ग्राफ y एंड x, और उसके अंदर आपको अगर एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, देन दैट इज दिस एरिया इज गिवन बाय y dx। ठीक है, y dx से देते हैं उसको, तो यहां पे जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? f इंटू dx, अगर x इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, अगर ये x ले लिया, इसको f ले लिया, तो इट विल बी f dx। और f dx होता क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वर्क डन। हो गया, वर्क डन के लिए यू जस्ट नीड दिस एरिया। अब देखो एरिया कितना है। फर्स्ट देयर इज अ रेक्टेंगल हियर, राइट, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? इफ यू नो द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला दैट इज आल्सो गुड, नो प्रॉब्लम। इसके लिए क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 4, द बेस इज 4 इंटू ये हो गया 2, हाइट इज 2, सो 4 2 जा 8, दिस इज फॉर रेक्टेंगल। देन यू हैव अ ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल के लिए क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 12 माइनस 7 विच इज 5 इंटू हाइट कितना है? 2, तो ये बन गया 5, 8 प्लस 5 13, है ना, 13 जूल। वेरी इजी क्वेश्चन, बट वी शुड नो दिस फैक्ट वी शुड नो, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स अस वर्क डन। ठीक है, ग्रेट, 13 जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन, है ना। ही इज सेइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज बाय। क्या करेंगे इसमें? देखो, आई नो द फॉर्मूला, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। याद है हमने क्या किया था? मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय मास, ये चीज क्या बन गई थी? देखो, पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ओके, ग्रेट, दिस फॉर्मूला एवरीवन नोस। फॉर कांस्टेंट मास कैन आई से दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर? यस, ग्रेट। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट? 300%। मोस्ट ऑफ यू फेस डिफिकल्टी इन दिस परसेंटेज वाला केस। मैं पहले परसेंटेज क्लियर कर देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ki, ये इनिशियली था। ओके, फाइनली व्हाट हैपेंड? इट गॉट इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब कुछ था पहले प्लस 300% उसका इंक्रीज हो गया। तो इफ आई वांट काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मैं क्या लिखूंगा? देखो, इनिशियल तो है ही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
उसमें कितना ऐड हो गया 300% ऑफ इनिशियल। मतलब देखो 300% का मतलब 300/100 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में आया क्या? फाइनल विल बी हाउ मच? इनिशियल प्लस 300% ऑफ इनिशियल। ये कितना आ जाएगा देखो 3ki प्लस ki 4ki। मतलब इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300% इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके ग्रेट। अब देखना यहां से, आई नो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू लिख लो P फाइनल अपॉन P इनिशियल का होल स्क्वायर, है ना गाइस? फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का होल स्क्वायर। डिड आई से पोटेंशियल? सॉरी, मोमेंटम, है ना? मोमेंटम का स्क्वायर फाइनल अपॉन इनिशियल। अब ध्यान से देखना हाउ मच विल बी द वैल्यू। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका जो वैल्यू है दैट इज 4। तो व्हाट डू आई राइट हियर? P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल इज हाउ मच? 2। मतलब P फाइनल इज ट्वाइस ऑफ P इनिशियल। इफ समथिंग इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल दैट इंक्रीज्ड बाय 100%। ये समझ में आता है क्या? नहीं आता? कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। इफ आई वांट परसेंटेज इंक्रीज व्हाट विल आई राइट? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। सिंपल। तो P फाइनल कितना है देखो 2pi माइनस Pi डिवाइडेड बाई Pi इंटू 100 कितना आ जाएगा ये? Pi अपॉन Pi 1 इंटू 100 ओनली। तो 100% का इंक्रीज है, आंसर इज सी। ओके, सो इफ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय 300% मोमेंटम विल चेंज बाय 100%। ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंसीडर अ कार मूविंग along a straight horizontal road। तो एक horizontal road है and the car is moving along this horizontal road, है ना, with a speed of 72 km per hour। This is the initial speed 72 km per hour। If I want to convert into SI units, that is meter per second, क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 72 इंटू 5/18 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए इंटू 1000 अपॉन 3600 आवर टू सेकेंड। ये कितना आ जाएगा देखो 20 आ जाएगा ना। 18 4 जा 72, दिस इज 20 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्रेट। नाउ ही सेज इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज 0.5। 0.5 is the static friction का coefficient. The shortest distance in which car can be stopped is shortest distance in which car can be stopped. It started from this much speed. Final speed should be 0. इसको करने के दो तरीके हैं. One is you can use the kinematic equations and another one is from energy balance. देखना energy balance से करके बताता हूं because we are studying the chapter of work power energy, right? ध्यान से देखना. If it is moving with 20 meter per second, what is its initial kinetic energy? बताओ. Half mv square, though m is not given, I am just writing in terms of m only. Half m v square which is 20 का square which is 400. Initial kinetic energy, है ना? What is the final kinetic energy? Kinetic energy final, in final velocity is 0, so kinetic energy is also 0, right? It had some energy initially. How much? M into 400 by 2, that is 200 m times it has the energy. But finally there is no energy. Energy conservation says कि ये ऐसे नहीं हो सकता, right? Energy should be conserved. तो where is the energy going? Who is eating up that energy? Friction, है ना? वो फ्रिक्शन सारी एनर्जी खा जा रहा है यहां से यहां तक बिकॉज देयर इज स्लाइडिंग हैपनिंग. अब देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज हाउ मच? म्यू इंटू एम इंटू जी, दैट वी ऑलरेडी नो, राइट? So mu mg is the friction force. Now this friction is doing some work on the wheels and that is eating up all the energy. जो ये energy था ना half m 400, who is eating that energy? Friction. So that means I can say the work done by friction should be equal to वही change in kinetic energy वाली बात है ना, change in kinetic energy, work energy theorem. अब देखो work done by friction कितना है? कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा. देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है,
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दोनों में 180 का एंगल है एंड डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था cos थीटा, cos 180 इज -1, तो ये माइनस हो जाएगा, देखो ध्यान से। सो फोर्स इज म्यू mg इनटू लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज d, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाता है वो, इज इक्वल टू, और ये माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज 200 m, है ना, 400/2 200 m। अब ये m और ये m गॉट कैंसल्ड आउट, m का किस्सा खत्म हो गया, वैसे भी दिया हुआ नहीं था, है ना, टेंशन दे रहा था बेकार में। नाउ व्हाट अबाउट d, d विल बी इक्वल टू हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय म्यू इनटू g, म्यू इज 0.5, g ले लेते हैं 10, इट विल बिकम 5, आंसर आ जाएगा 40 मीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 40 मीटर। ग्रेट, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यू कैन से। अगर इसको काइनेमेटिक्स से करना है तो आप क्या करोगे, फोर्स आ गया दिस मच, एक्सेलरेशन आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय मास विच इज म्यू जी, और फिर आप ये लिख लो कि फाइनल एनर्जी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, सो विच एवर कंसेप्ट यू प्रेफर, इट्स अप टू यू। I needed to tell with this work energy theorem, I did that, right? Because right now we are doing work energy theorem only. चलो, great. Energy balance. आगे बढ़ जाते हैं guys. Yes, this question. Water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. Turbine है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं हम, हाइड्रल पावर प्लांट, you should know that. तो इसके ऊपर कुछ ऐसे वाटर गिर रहा है यहां से, राइट, ऐसे। Okay, how much is the rate of water falling? 15 kg per second. So it will rotate the turbine. और टर्बाइन के साथ आप क्या लगाओगे दोगे, जनरेटर, दैट जनरेटर विल क्रिएट द करंट और आपके घरों पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। खैर, इस पे आ जाते हैं। 15 kg per second is the mass of water falling on that from a height of 60 meter. चलो ये भी दिया हुआ है। 10% is going into frictional force loss. यहां पे कुछ फ्रिक्शन भी होगा, उसमें कितना लॉस हो रहा है, 10% ऑफ द एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट। अब देखना ध्यान से, ही इज आस्किंग हाउ मच इज द पावर जनरेटेड बाय द टर्बाइन। देखो, आई नो वर्क डन का फॉर्मूला, इफ समथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम 60 मीटर हाइट, इट विल बी डूइंग अ वर्क ऑफ mg into h, है ना। बट इफ आई वांट पावर, पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट, मास अपॉन टाइम इनटू gh। दिस इज गिवन टू मी, देखो ध्यान से, 15 kg पर सेकेंड ये दिया हुआ है मुझे, तो इट विल बी व्हाट, 15 kg पर सेकेंड हो गया इंटू g विच इज 10 इंटू h विच इज 60, राइट, ये 60 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ले लो इसका, कितना हो जाएगा, 15 6 90 और 2 0 और हैं, तो इट विल बी 9000 यूनिट जूल और वॉट, दिस इज वॉट, क्योंकि आपने पावर लिखा है ना, दिस इज नॉट मास, दिस इज मास फ्लो रेट, तो ये एनर्जी फ्लो रेट बन गया, ठीक है, दैट इज पावर ओनली। तो 9000 वॉट इज द पावर। आउट ऑफ दिस 9000, ये कहां से मिला टर्बाइन को, वाटर से। वाटर जब यहां से यहां नीचे आया, देन इट गेव सम एनर्जी ऑफ 9000 जूल पर सेकेंड और 9000 वॉट पावर। दिस होल पावर इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड। फाइनल आउटपुट ऑफ पावर जनरेटेड बाय द टर्बाइन is not this much. This is just what is falling on the turbine. 10% of it getting lost. इसका 10% कितना हो जाएगा guys? 9000 into 10 divided by 100. कितना आ रहा है ये देखो, 2 0 गए, ये 900. इसका जो 10% है वो है 900 and this is getting lost, है ना, ये क्या है, लॉस है। तो टोटल 9000 was incident, 900 is lost, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, output will be this input which is 9000 minus the loss which is 900, तो कितना आ गया आंसर, 8100 वॉट, दिस इज द आउटपुट। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.1 किलोवाट, उसने किलोवाट में पूछा है, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी गॉट दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैन ऑल्सो आस्क द एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी भी पूछ सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना, क्या लिखोगे आप, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपको आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इनपुट यू हैव गिवन, है ना। कितना हो जाएगा आउटपुट, 8100, इनपुट इज हाउ मच, 9000, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 90%,
मल्टीप्लाई कर लो ना 100 से, इट विल बी इक्वल टू 90%. नाउ इट विल काइंड ऑफ मेक सेंस कि लॉस वाज 10%, तो एफिशिएंसी वाज 90%. इफ अ सिस्टम इज हैविंग लॉस ऑफ 10% देन इट इज 90% एफिशिएंट. समझ में आया क्या? सो इफ ही हैड आस्क्ड द एफिशिएंसी, आई वुड नॉट हैव डन दीज थिंग्स. आई वुड जस्ट टेल अच्छा लॉस हो रहा है 10%, एफिशिएंसी 90% है. गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेट. चलो, सो इवन इफ यू वांट आउटपुट और एफिशिएंसी यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट. आगे बढ़ जाते हैं. दिस क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वन बट वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल पेंडुलम इज गिवन, लेंथ L. द बॉब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्रू एन एंगल थीटा. मतलब ऐसा कोई पेंडुलम है, ठीक है, यहां से ये हिंज्ड है एंड दिस इज पुल्ड असाइड बाय एंगल थीटा. यहां पे लेके आए इसको, यहां पे कहीं पे, राइट, एंगल थीटा, एंड देन इट इज रिलीज्ड. व्हेन इट इज रिलीज्ड, बॉब पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ स्पीड. जब आप इसको यहां पे लेके जाओगे, सम mg फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. दिस mg विल हैव टू कंपोनेंट्स. ध्यान से देखना, इफ यू सी दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? थीटा ओनली. अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा. तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, mg cos थीटा, एंड वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विच इज mg sin थीटा. दिस mg sin थीटा विल प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑन दिस एंड इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक, राइट, पेंडुलम को वो वापस इधर लेके आएगा. देन पेंडुलम विल पास थ्रू दिस. दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इसको छोड़ दो, पेंडुलम को, कुछ भी मत करो, देन इट विल बी इन दिस पोजीशन बिकॉज नेट फोर्स विल बी जीरो हियर. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहां पे ही इज आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी. दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजीली यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, यहां का एनर्जी इज इक्वल टू यहां का एनर्जी बिकॉज नो एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. और यही आप बाद में एसएचएम में पढ़ते हो इसको एज टाइम पीरियड. अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा देन आफ्टर सम टाइम इट विल रीच दिस साइड ऑल्सो, है ना. तो ऐसे ऐसे देखो ये ऑसिलेशन होने लगेगा, राइट. दीज आर नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन. ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और बीच वाला जो है वो दैट इज मीन पोजीशन. ही इज आस्किंग वेलोसिटी एट मीन पोजीशन. चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. ये देखो ये डायग्राम है ना, यहां से हो जाएगा. डायग्राम से समझाता हूं मैं. लेट्स से लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम यहां से लेके यहां तक, द लेंथ इज L. ओके, तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये भी L ही है ना. लेंथ छोटा थोड़ा ना हो जाएगा. पेंडुलम तो सिर्फ उठ के यहां से यहां चला गया. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग, राइट, बट इट इज राइजिंग फ्रॉम दिस लेवल. अगर यहां पे मान लो h आप 0 लेते हो तो इट इज राइजिंग थ्रू सम लेवल, राइट. h से वो राइज कर रहा है. अब देखना ध्यान से, एट दिस पोजीशन यहां से आपने इसको रिलीज किया, राइट. दिस एंगल इज थीटा. यहां से वी हैव रिलीज्ड द पेंडुलम. रिलीज्ड का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी हियर इज 0. यहां पे वेलोसिटी 0 है. व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन? वो भी 0 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0. ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट 0 एंड दैट इटसेल्फ आई हैव टू कैलकुलेट बिकॉज आई वांट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ओनली. इससे अभी कोई मतलब नहीं, इसको मत देखो अभी, ठीक है. दैट इज जस्ट द अदर साइड ऑफ इट. Let's say here at this position I am taking the potential energy to be 0 because for potential energy I can take any reference, right. कहीं भी reference ले सकता हूं. I could have taken this also as 0 तो ये माइनस हो जाता. That is a different conversation. यहां पे हमने क्या बोल दिया? potential energy is 0. तो what about potential energy of this height? थोड़ा potential energy होगा because it is having some height. How much is that height? ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, in terms of L. How much is that height? अब ध्यान से देखना. Let's draw a line from here to here, ऐसे horizontal line, ठीक है. How much is this length of the string? ये पूरा का पूरा ये कितना है? L. ये कितना है? L. तो what is the component of L in this direction? ये वाला height देखो, ये कितना हो जाएगा? एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो अगर ये साइड L है then this side component of L in this direction L cos theta. सबको आता है ना निकालना ये, तो ग्रेट. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L cos थीटा. हो गया. ना देखो ये पूरा कितना था? दिस हाइट इज L, राइट. यहां से लेके यहां तक ये पूरा इज L एंड अप टू दिस इट इज L cos थीटा. यहां तक L cos थीटा और पूरा इज L. तो हाउ मच इज दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ हाइट H? ये वाला हाइट H L माइनस L cos थीटा, है ना. L माइनस L cos थीटा. तो यहां से जो हाइट आ गया दैट हाइट विल बी गिवन बाय L माइनस L cos थीटा. एक बार फिर से बता देता हूं मैं. दिस स्ट्रिंग इज हैविंग लेंथ L.
है ना, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉप किया हमने इसके परपेंडिकुलर, सो दिस हाइट यहां से यहां तक, द बॉल का हाइट फ्रॉम हियर इट विल बी L cos थीटा, बट वी नीड दिस हाइट नाउ, ये वाला हाइट चाहिए, टोटल हाइट इज L, ये पूरा हाइट कितना है L, दिस हाइट इज L cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल L माइनस L cos थीटा, ये लिख लिया यहां पे, ठीक है। सो इफ दैट इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का यहां पे, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी देयर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट, ठीक है, वहां से रिलीज किया क्योंकि, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज mg L माइनस L cos थीटा, L को कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा। व्हाट अबाउट वहीं पे, व्हाट इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी एट द सेम पोजीशन, 0, वहां से तो स्टार्ट किया ना 0। सिमिलरली मान लो ये वाला पॉइंट है फाइनल पॉइंट, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही हैज आस्क्ड द वेलोसिटी, तो यहां पे पूछा है व्हाट इज द फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज आई हैव टेकन दैट एज अ रेफरेंस, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया है तो 0। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ mv स्क्वायर, सिंपल है ना, हाफ mv स्क्वायर। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी इन फाइनल पोजीशन and this is the total energy at initial position. My work energy theorem says that total energy initial should be equal to total energy at final point. तो इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा, so what will you write, half mv square is equal to that mgl 1 minus cos theta। हो गया, अब देखो m और m हो गए कैंसिल, v क्या आ जाएगा देखो, 2 इस साइड, so 2gl 1 माइनस कॉस थीटा और इसका अंडर रूट, ठीक है, बिकॉज v स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट, सो अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, विच ऑप्शन इज मैचिंग गाइस, ध्यान से देख लेते हैं, अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन डी, ठीक है। सो दिस वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट दिस काइंड ऑफ रिवाइजेस एवरीथिंग, राइट, वर्क पावर एनर्जी ढंग से यहां से रिवाइज हो जाता है। 5 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग एज अ होमवर्क, वो प्लीज आप ट्राई करना एंड यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स, ओके, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी मुझे बताना। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड प्रिपेयर वेल, एग्जाम इज वेरी नियर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इन फिजिक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इज डूइंग मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मार्क्स आर प्रोपोर्शनल टू दैट, ओके, ग्रेट। चलो, बिफोर एंडिंग दिस ये एक बार स्केड्यूल्स देख लो आप, ओके, सो दिस इज फॉर फिजिक्स, अगेन दिस इज फॉर फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री, देखते जाओ फटाफट, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, दिस इज फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, okay, great. And again, if you have not done yet, please download this Vedantu app, super useful app, okay, great. और 5 क्वेश्चंस भी वहीं पे मिलेंगे, as I told, right, PDF. Yes, and like, share and subscribe to the channel. चलो guys, bye bye, prepare well, have a nice day, bye.